Hello everyone, this is Neha Vijay Gandhi, Assistant Professor at Maulana Azad University, Jodhpur. Welcome in Biochemistry class. Today's topic is amino acids. What's the amino acids? Amino acids are the organic compounds containing amino group, carboxylic group and alkyl group. Key elements कौन कौन से हैं मेजर? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन and oxygen. In our nature, in our environment, 500 amino acids are exist, but only 20 we will study about 20 amino acids because 20 amino acid is appear on the genetic code. It is classified in many ways. Basic structure of the amino acid is amino group, carboxyl group and alkyl group. This alkyl group only change in all amino acids. We will check in the classification. This is the classification of amino acid based on different ways, like R alkyl group, like polarity, like aromatic, aliphatic, positive, negatively charged, carboxylic group, amino group. These are the different way we will classify according this. Need for classification. Classification is amino acids give grouping between 20 amino acids. Outline. Why? Because it is a clear idea and how amino acid is different from each other. And this is most useful for the biochemists and also students for easy understanding between each amino acids. What's the classification? Based on alkyl group, based on polarity. Polarity. What is the polarity? Polarity are the having poles or being polar. मतलब it exhibits polarity. Like hydrophilic, water loving, positive charge, negative charge, both. Distribution. Distribution मतलब some proteins are used in the some amino acids are used in formation of the protein and some are used in the metabolism. And some are also derived protein. Those both prepared from the polarity, non-polarity, standard, non-standard amino acids. Nutrition requirement. Nutrition क्या है? It is essential and non-essential. Essential. What is essential? Essential amino acids are the these are take in the diets. मतलब they are not secreted or not made in the body. That's why its name is essential. And non-essential amino acid मतलब not required from the environment, from the diet, because they all are secret in our body. And number of amino acid, if one amino acid join, then monoamino. If two carboxylic means monoamino, two carboxylic acid amino acids. Based on the R group मतलब alkyl group. Simple amino acids, first one is मतलब no functional group. Functional group all you know very well about. Hydroxy group, sulfur group, etc. They all are functional group. When amino acid side chain have no functional group, it come in the simple amino acids like leucine, isoleucine, valine, alanine. These all are the R group. Example देते हैं आपको. In these amino acids, glycine, valine, leucine, isoleucine and alanine, they all five don't have any hydroxy group, any thio group, any sulfur group, any other side chain. मतलब they have only alkyl group and branch alkyl, but no any functional group present here. That's why it comes in the non-functional or simple amino acids. If second one है हाइड्रोक्सी कंटेनिंग एमिनो एसिड मतलब दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर साइड चेन. सेरिन एंड थ्रियोनिन वो एमिनो एसिड जिनके साइड चेन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. आपको एग्जांपल बताते हैं. सेरिन एंड थ्रियोनिन, दिस इज द सेरिन एंड थ्रियोनिन, दे ऑल हैव द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. If amino acids have side chain in the hydroxy group, then it comes in the hydroxyl group containing amino acids.
नेक्स्ट वन इज सल्फर कंटेनिंग, वो एमिनो एसिड जिनकी साइड चेन पर सल्फर है, हैव सल्फर इन देयर साइड चेन. सिस्टीन एंड मिथायोनिन, cysteine and methionine have sulfur group, like sulfur group this one and the sulfur. Cysteine and methionine comes in those amino acids have side chain in the sulfur group, methionine and cysteine. If we talk about the aromatic मतलब they have benzene ring in this side chain, मतलब phenylalanine and tyrosine, both amino acids have benzene ring in the side chain. This is the one and this is the second. Phenylalanine and tyrosine both have the benzene ring in their side chain. That's why it come in this amino acid category. एंड हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड मतलब बेंजीन रिंग है, उसके साथ कुछ और कार्बन रिंग यदि कोई फ्यूज है. दिस इज ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन. ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन. देखिए ट्रिप्टोफैन दिस वन, हिस्टिडीन एंड प्रोलीन. दीज ऑल हैव वन मोर कार्बन एटम इन देयर साइड चेन ऑफ. yes, this is the cyclic, and in the side chain one carbon atom again join, like histidine also, tryptophan, histidine and proline. These all three comes in the heterocyclic amino acids. If we will talk about the amine group, मतलब एमिनो ग्रुप रख रहे हैं साइड चेन में, तो एमिनो ग्रुप कौन से हैं? वो एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन द एमाइड ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एमाइड ग्रुप में, एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन. यस, वी विल अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम. दीज बोथ आर कम इन दिस कैटेगरी. मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, in this diagram carboxylic acid is transferred in the amine group. ठीक है, that's why it come in the arginine and glutamine. branch chain amino acid BCAA amino acid having aliphatic side chain, मतलब branch है. amino acids containing, if amino acids containing branch chain, then it come in the branch chain amino acids, leucine, isoleucine, valine. ये तीनों we have already discussed in the first one. simple amino acid मतलब no functional group. अब सेम आ गया कि यदि हम ब्रांच चेन के अकॉर्डिंग इनको समझें तो ब्रांच चेन किस किस में, वैलिन, एलिनिन, ल्यूसिन के अंदर, आइसोल्यूसिन तीनों के अंदर आ गया. वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन हैव ब्रांच चेन. एक मिथाइल ग्रुप के अलावा इसके अंदर और ब्रांच चेन है, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, देन इट कम्स इन द ब्रांच चेन अमीनो एसिड BCAA. इट हैज़ कंप्लीटेड. यदि एसिडिक की बात करें, एसिडिक मतलब साइड चेन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है. कौन कौन से आगे, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक. यदि साइड चेन पर बेसिक एमिनो ग्रुप है तो लाइसिन, आर्जिनिन. यदि इम्यूनो मतलब इमीन, जो आपके स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में एक एमिनो एसिड था वो कहीं रोल प्ले नहीं कर रहा, बट दिस इज द एक्सेप्शन केस इन प्रोलीन ग्रुप. दिस एमिनो एसिड्स हैज कंटेनिंग, यस इट इज फ्यूज्ड विद द साइक्लिन चेन प्रोलीन. यदि एसिडिक रखता है तो एसिडिक एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामेट. देखिए एस्पार्टिक और ग्लूटामेट देखिए जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, दे बोथ हैव द कार्बोक्सिलिक. यदि एमीन ग्रुप का अर्थ करें तो लाइसिन एंड हिस्टिडीन, आर्जिनिन तीनों पर एमिड ग्रुप है. अब यदि अब आपकी बात करें लास्ट वन इम्यूनो, तो इसमें क्या सेकेंडरी एमिनो एसिड जो यहाँ पर ये अलग था, ये कहीं ज्वाइन नहीं हो रहा था, इसके अंदर एक्सेप्शन केस है. दिस एमिनो एसिड इज फ्यूज्ड विद द ब्रांच चेन एंड इट इज कम इन द इमीन सेकेंडरी amino acid is joined. This is the proline. अब second classification है based on R group is completed and second one is polarity. Polarity we have already discussed, means their property having poles or being polar, मतलब it exhibit polarity. Hydrophilic. यदि हम बात करें नॉन पोलर,
नॉन पोलर, यस, पोलर मीन्स दे हैव बीइंग पोलर और बीइंग पोलर, पर नॉन पोलर का मतलब है कि आपके इसके अंदर हाइड्रोफोबिक है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक, हैविंग हेलिफेटिक एंड एरोमेटिक, यस, दोनों चीज़ें हैं, हैव एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब आप उस क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाली, एलिफेटिक साइड चेन, वो इसके अंदर सब आ जाएंगे, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड प्रोलिन। यदि हम बात करें एरोमेटिक की, यस, एरोमेटिक बेंजीन रिंग की, तो फिनाइल एलिनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथानिन, मिथानिन वो जिसमें सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ था, यस। अब बात करते हैं एमिनो एसिड विद पोलर, नॉन पोलर की बात कर ली थी, हाइड्रोफोबिक, यदि पोलर की बात करें तो हाइड्रोफिलिक, पर इन दिस आर ग्रुप चेन, बट इधर दे आर unchanged R group. These amino acids have polar and possess neutral pH value. देखिए पोलर आ गया है एंड पोजेस, ये इसमें प्रॉपर्टी रखता है कि इसका जो pH वैल्यू वो न्यूट्रल है। कौन कौन से है? ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रेओनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लूटामिन एंड एस्पेराजिन। आपको इसमें याद करना है नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पोलर है। पोलर में आपको बताया बीइंग पोलर हो सकता है, नॉन पोलर में तो कोई सब डिवाइड नहीं। पोलर के अंदर बताया नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या नेगेटिवली चार्ज है तो साइड चेन आर ग्रुप के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक दोनों में आप देखना स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यदि पॉजिटिवली चार्ज करें तो बेसिक ग्रुप है, एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप है, ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीन, बेस्ड ऑन द नेगेटिव ग्रुप एंड पॉजिटिव ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या चीज़ है? कुछ ऐसे प्रोटीन है जो एमिनो एसिड बनाने में प्रोटीन, कुछ ऐसे एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे एमिनो एसिड जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, कुछ एमिनो एसिड है वो जो डेराइव है। तीन तरह से पढ़ेंगे हम इसको। स्टैंडर्ड प्रोटीन एमिनो एसिड्स मतलब दे आर यूज टू फॉर्म प्रोटीन, क्लियर। अब रिकॉग्नाइज बाय किस किस सिस्टम से होंगे? एमिनो एसाइलेशन सिस्टम एंड राइबोसोम से। कौन कौन से वो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड जिससे प्रोटीन बनता है? स्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, इनके अंदर ये सब एमिनो एसिड्स आएंगे। यदि हम बात करें नॉन स्टैंडर्ड की, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की बात करें तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोटीन, बट दे आर द वाइटल रोल, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते किसके अंदर? मेटाबॉलिज्म में। तो क्या इंटरमीडिएट है? यदि प्रोलीन है तो उसका इंटरमीडिएट हाइड्रोक्सीफ्लोरीन, यदि लाइसिन एमिनो एसिड तो उसका इंटरमीडिएट हाइड्रोक्सीलाइसिन, कार्बोक्सीग्लूटामिन, डाइएमिनो मिलेट। अब नॉन स्टैंडर्ड नॉन एमिनो एसिड मतलब नहीं, ना कि स्टैंडर्ड भी नहीं है और नॉन प्रोटीन भी नहीं है, मतलब दे आर द डेराइव्ड, यस, एनी स्ट्रक्चर, एनी केमिकल, एनी सॉल्वेंट से मिलकर डेराइव प्रोटीन है, लाइक अल्फा एमिनो ब्यूटाइरेट, सिट्रुलिन, ऑर्निथिन एंड बीटा एलेनिन। And next one is based on the nutrition. First type for nutrition. This is a very important. It also come in the competitive exam. Pharmacist, GPET, etc. Essential amino acids कौन से हैं? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से डाइट्स की रिक्वायरमेंट है। मीन्स essential amino acids cannot be made by the body. They must come from the food, diet. क्लियर। अब इसेंशियल कौन कौन से? हम इनको डिवाइड करेंगे, 10 इसेंशियल है और 10 ही नॉन इसेंशियल है। 20 एमिनो एसिड्स में से हमने क्या किया? 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। बस इसमें एक एक्सेप्शन केस है आर्जिनिन का, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, वहाँ 11 हो जाएंगे यदि हम एक्सेप्शन केस पर बात करें। नॉर्मली यदि कोई पूछे इसेंशियल आर्जिनिन इन विच कम्स, देन इसेंशियल, बिकॉज आर्जिनिन नॉट form or not made in the body in children's, मतलब it is not formed in the growing children, it is only synthesized in the young children, young। then हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि they can be made by the human। नॉन इसेंशियल मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अपने आप ही सीक्रेट होते हैं, अपने आप ही सिंथेसाइज होते हैं। अब अपने आप ही सिंथेसाइज होते हैं तो इधर आर्जिन का क्यों आएगा? 11 क्यों हुआ? क्योंकि अडल्ट्स के अंदर, यंग्स के अंदर आर्जिनिन अपने आप सिंथेसिस होता है, तब इट आ जाएगा इधर। ग्रोइंग चिल्ड्रंस में आर्जिनिन अपने आप सिंथेसिस नहीं होता, इसको हमें डाइट से लेना होगा, इसलिए इधर आर्जिनिन आया।
Histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine, they all come in the essential amino acids, and remaining 10 comes in the नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. नॉन एसेंशियल मतलब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बाहर डाइट से ये हमारी बॉडी में अपने आप सिक्रेट होते हैं, अपने आप सिंथेसाइज होते हैं. ऑन द लास्ट वन इज on the basis of classification of amino acid on the basis of number of amino carb. यदि सिंगल एमिनो है तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मोनो एमिनो. यदि सिंगल कार्बोक्सिलिक है तो हम इसको बोलेंगे मोनो. यदि हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दो है तो हम बोलेंगे मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक. अब देखो सिंगल मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिलिक का हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लिया है. मोनो मतलब एक एमिनो और एक कार्बोक्सिलिक, इसलिए हमारा ग्लाइसिन. तो इसके अंदर भी एग्जाम. और दूसरे कौन कौन से? एलेनिन, प्रोलिन, फिनाइलएलेनिन, मेथियोनिन, सेरिन एंड थ्रेओनिन. मोनो एनिनो डाइकार्बोक्सिलिक ओनली एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक. अब अपना क्लासिफिकेशंस कंप्लीट हो चुका है. प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? कलरलेस है, क्रिस्टलिन इन नेचर मतलब कोलाइडल इन नेचर, टेस्टलेस. टायरोसिन है उसका टेस्ट होता है टेस्टलेस. यदि हम ग्लाइसिन की बात करें तो इट इज़ स्वीट इन नेचर. यस. मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड. सॉल्युबल होता है पोलर में, इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर में. पोलर आपको पता है वाटर. नॉन पोलर किसको कहते हैं? इमिसिबल मतलब नॉट सॉल्युबल इन द वाटर. तो किस में होगा? कौन से में नॉन पोलर सॉल्वेंट? आपके बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्लियर है? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब यदि हम इसकी उसमें चेक करें यूवी के अंदर अलग अलग तरीके से चेक करें तो इसकी एब्जॉर्बेंस होती है 280 नैनोमीटर. यस. इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 to 50,000 dt. ऑल एमिनो एसिड पोजेस ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, एक्सेप्ट ओनली ग्लाइसिन क्योंकि इट इज स्ट्रक्चर इज स्टेबल, स्टेरिकली हिंडर्ड. स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज कॉम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट विच डिक्टेट द शेप एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल. ये जो ग्लाइसिन है उसके अलावा सारे एमिनो एसिड्स हैव ऑप्टिकल आइसोमर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक अल्फा कार्बन एटम. एमिनो एसिड्स आर पोजेस द एंजाइमेटिक एट. हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि देयर मेटाबोलाइट्स आर यूज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन. ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन बिकॉज दे आर द टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म, catalytic effect and provide energy in the body. Amino acid exhibit colloidal in nature and denaturing property. A chemical property. All are the physical property and these are the chemical property. यदि हम डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो यहाँ CO2 रिमूव होगा. क्लियर? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब the amino acid will undergo decarboxylation form corresponding amines. These amines are produced मतलब histidine corresponding amines बनाएंगे मतलब histidine histamine बनाएगा, tyrosin tyramine बनाएगा, lysine cadaverine बनाएगा. क्लियर? एंड डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ सब में CO2 रिमूव हो गया. यदि हम रिएक्शन विद एल्केलीज की बात करें, सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करें तो एल्केलीज मतलब हम लोग यहाँ यूज़ करें सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एमेड कैन रिलीज H+ आयन. क्लियर? जब आप यहाँ पर हमने एमिनो एसिड की रिएक्शन एल्केलीज के साथ कराई तो यहाँ हाइड्रोजन आयन तो रिमूव हो गया और OH जुड़ के ये क्या बनाया? कार्बोक्सिलेट आयन बनाया. दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन. रिएक्शन विद एल्कोहल, जब एल्कोहल की बात करें तो एस्टरिफिकेशन. ठीक है, क्या होता है ये एस्टरिफिकेशन? दीज आर द केमिकल कंपाउंड डेराइव फ्रॉम द एसिड मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन विच एटलीस्ट वन OH मतलब देखिए वन OH हैव इज रिप्लेस बाय द एल्काइल एल्कोक्सी ग्रुप. आपको समझाते हैं. द एमिनो एसिड इज रिएक्टेड विद एल्कोहल. एल्कोहल से जब रिएक्ट किया इसने, ठीक है, जब इसने इथेनॉल, ठीक है, C2H5 के इथेनॉल से जब इसने रिएक्ट किया तो एस्टर्स बनाया. ये ज़्यादा एस्टर. दीज एस्टर आर वॉलेटाइल मतलब दे हैव ए प्रॉपर्टी टू वॉलेटाइल नेचर एंड फॉर्म एमिनो एसिड और एमिनो एसिड्स बनाएगा. दिस इज द एस्टरिफिकेशन. अब हमारा लास्ट है एमिनो एसिड का फंक्शंस क्या क्या हैं. देखिए, दे आर द मोनोमर यूनिट्स विच आर द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन. हमने डेफिनेशन में पढ़ा था प्रोटीन आर द derivative and they are joined together with the peptide link. All amino acids are joined together with the peptide link. तो यदि लॉन्ग चेन हो जाती है इसको तो हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. इसके अंदर सिंथेसाइज हुई.
they are form the peptide bond. L amino acid, D amino acid पता है, left right amino acid, L left side if amino acid तो L, they are the derivative in the cellular function, मतलब nerve transmission में cellular and biosynthesis of porphyrin, purine and pyrimidine-urea. Porphyrin क्या है? Some students are know very well, group of the pigments, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. These are the porphyrin. Purine and pyrimidine both are used in the synthesis of DNA, RNA, synthesis of nucleic acid. And urea. What is the urea? Urea is the chief nitrogenous end product of the metabolic breakdown. Yes, प्रोटीन का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है जो सभी मैमल्स में और सभी कुछ फिशेस में भी होता है. अब बात करें तो यूरिया इज नॉट ओनली यूरिन इन ऑल मैमल्स बट ऑल्सो देयर ब्लड, बाइल, मिल्क एंड देयर perspiration also. एंड यदि कुछ एमिनो एसिड्स की बात करें तो कुछ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करते हैं जिससे कुछ रोल इंपॉर्टेंट होता है. क्या क्या? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या क्या, हार्मोन्स, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स. निएसिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन क्या है? आपका एमिनो एसिड. और दीज 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ट्रिप्टोफैन. निएसिन क्या है? विटामिन B3 है, मतलब निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. सेरोटोनिन की बात करें तो क्या चीज़ है ये सेरोटोनिन? सेरोटोनिन आपका एक हार्मोन है जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, मतलब की हार्मोन दैट स्टेबलाइज आवर मूड, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, हैप्पीनेस. इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द स्लीपिंग एंड ईटिंग एंड डाइजेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेलाटोनिन की बात करें तो मेलाटोनिन क्या है? इट इज़ रिलीज बाय द पीनियल ग्लैंड एट द नाइट, बट इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल. क्या करता है? एक स्लिप वॉक साइकिल, सोना उठना ये सब आपकी एक साइकिल है, तो इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द स्लिप वॉक साइकिल. क्लियर? दिस इज द मेलेटोनिन. हम मेलेनिन की बात करें, मेलेनिन क्या चीज़ है आपका? मेलेनिन एक डार्क ब्राउन और ब्लैक पिगमेंट है जो हेयर्स में, स्किन में, आइस की आइरिस में, सभी पीपल्स और एनिमल्स में होता है. ठीक है. थायराइड हार्मोन आप सबको पता है, T3, T4, ट्राइडो, टेट्राइडो. कैटेकोलामाइन, कैटाकोलामाइन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स है. कैटाकोल, यदि ये कैटाकोलामाइन की बात करें तो कैटाकोलामाइन क्या करता है? कैटेकोल अपनी ब्लड में जाता है. उससे क्या होता है? जब भी आप लोग फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेस है, जब ये अपने आप ही ब्लड में जाता है. गावा क्या है? गाबा गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड. ठीक है. गामा एमिनो ब्यूटाइड न्यूरोट्रांसमीटर है. इट इज़ इनहिबिटरी. जब कुछ न्यूरॉन से बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं देन ये क्या करता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है जिससे वो रिड्यूस करता है किस चीज़ को? जो न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं. यस, रिड्यूसिंग न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी थ्रू द सिस्टम. दिस इज द गाबा. ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ग्लूटामिक एसिड. इट इज ऑल्सो एमिनो एसिड. नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो इट इज स्मूथ मसल रिएक्शन सिंथेसिस बाय द आर्जिनिन. आर्जिनिन ऑल्सो एमिनो एसिड्स. एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर हीम. ब्लड इज ए इम्पॉर्टेंट. एंड क्रिएटिन, पोरफायरिन हम बात करते हैं. ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्यूरिन एंड पिरिमिडिन आर हेल्प इन द न्यूक्लिक एसिड. क्रिएटिन इज द ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर.